Before we meditate on the Word of God, let us look unto the Lord in prayer. खुदा का कलाम का मुताला करने से पहले चले हम दुआ मांगेंगे। Our loving Heavenly Gracious Father, once again we thank you and we praise you, Lord. है हमारे आसमानी प्यारे बाप, और एक बार हम आपकी हमद सना बजा लाते हैं और आपकी इबादत करते हैं। Father, now as we are standing here to share thy word, to meditate on thy word, strengthen us, Lord, and Lord, fill us with thy spirit. खुदावन, जैसे ही हम अब आपके कलाम का मुताला करने के लिए आपके पास खड़े होते हैं, खुदावन आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमें आपके पाक रूह से मामूर फरमाएं। Father, once again we thank you for bringing us here to worship you, and also, Lord, every time that, Lord, from your word, that you are strengthening us, Lord, we thank you. खुदावन, आपके कलाम के करीब आप हमें लाते रहते हैं और लाने के हर वक्त आपके कलाम से हमें मजबूत बनाते हैं। हम आपका शुक्र अदा करते हैं। Father, we pray that, Lord, speak with all of us from thy word. खुदावन, आपके कलाम के जरिए हम सबों से आप गुफ्तगू करें। Committing ourselves unto your loving hands with the humble heart, we pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. अपने आप को आपके हाथों के सुपुर्द करते हुए, हम सबों को आपके हाथों के सुपुर्द करते हुए छोटी सी दुआ हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशुआ के पाक नाम से मांगते हैं। आमीन। Let us turn our Bibles to the book of Psalms, chapter 48. Psalm number 48. मज़ामीर की किताब चैप्टर नंबर 48 हम देखेंगे। 48, first 3 verses. मज़ामीर की किताब चैप्टर 48 पहले 3 आयतें। Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of his holiness. Beautiful for situation, the joy of the whole earth is the Mount Zion, on the sides of the north, the city of the great king. God is known in her places for a refuge. हमारे खुदा के शहर में अपने कोहे मुकद्दस पर यहोवा बुजुर्ग और बेहद सिताइश के लायक है। शिमाल की जानिब कोहे सियोन, जो बड़े बादशाह का शहर है, वो बुलंदी में खुशनुमा और तमाम जमीन का फख्र है। उसके महलों में खुदा पनाह माना जाता है। This is the psalm written by sons of Korah. ये गाना जो है, गीत जो है, बनी कोराह का लिखा गया है। And it is the psalm and song written when the situations are so worst in the time there. उन दिनों में जब हालात बहुत बिगड़ चुके थे, उस वक्त लिखा गया गीत है। Here in this psalm, we see that in the 4th verse onwards, little bit background of the psalm. यहाँ पे हम इस पस मंजर को देखते हैं कि ये मजमूर जो है कब लिखा गया है। What is that background might be that many kings came against this city. यहाँ पे ये बैकग्राउंड ये है कि बहुत सारे बादशाह इस शहर के मुखालिफ बनकर आए हैं। So that means that already the kingdom of Israel was already established. इसका मतलब ये होता है कि ये इस्राएल का सल्तनत जो है, मुल्क जो है, वो उस वक्त कायम था। Children of Israel were living in that city. और उस शहर में इस्राएल के बच्चे जो थे, वो सब के सब वहाँ बाशिंदे बनकर जीते थे। And the great thing is that God is also living in that city. और इन सारी बातों में से अजीम बात यह है कि खुदा उस शहर में मौजूद था। But the enemy don't know that God is living with them. लेकिन दुश्मन तो ये नहीं जानता कि खुदा उनके साथ वहाँ रहता है। They wanted to invade that city and they came and they wanted to defeat that city, the people. और इसलिए अनजाने में वो लोग इस खुदा के शहर पर वार करते हुए आकर उस पर गालिब आना चाहते थे। And when they came, the 5th verse is telling us that they saw it and so they marveled, they were troubled and hasted away. और वहां आने के बाद उसे देख कर क्या होता है उनके सामने, 5वीं आयत में पढ़ते हैं, वो देख कर दंग हो गए, वो घबरा कर भागे। And 6th verse is telling us that fear took hold upon them there and pain as of a woman in travail. 6ठी आयत, वहां कपकपी ने उनको आ दबाया और ऐसे दर्द ने जैसा दर्द-ए-ज़े। So why people are the enemy troubled so much
is because God is there. यहाँ आने के बाद ये दुश्मन जो है ये इतना क्यों घबराया, क्योंकि वहां उनके दरमियान खुदा खुद मौजूद था। So in these first 3 verses, let us see 3 things to worship our God. तो पहली 3 आयतों में आज हम 3 बातें देखेंगे जिनसे हम हमारे खुदा की आज इबादत करेंगे। What the verse number 1 is telling us that great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of his holiness. पहली आयत में हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि हमारे खुदा के शहर में अपने कोहे मुकद्दस पर खुदावंद यहोवा बुजुर्ग और बेहद सिताइश के लायक है। Great is the Lord, greatly to be praised in the city of our God. यहोवा बुजुर्ग और बेहद सिताइश के लायक है हमारे खुदा के शहर में। It shows that God is dwelling in that city. इसका मतलब ये है कि खुदा उस शहर में रहता है। God is dwelling in that mountain of his holiness. अपने कोहे मुकद्दस पर खुदा खुद रहता है। God chosen that city, God chosen that people of Israel to dwell among them. खुदा ने अपने खुद के लोगों को उस कोहे मुकद्दस को उसने चुना कि वो उनके दरमियान रहे। So, dear brothers and sisters, तो प्यारे भाइयों बहनों, likewise God also chosen us today. इसी तरह खुदा ने हमको भी आज चुना है। He loved us so much उसने हमसे इतनी मोहब्बत से पेश आई and he sent forth his only begotten son for us. कि उसने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को हमारे वास्ते इस दुनिया में भेजा। Our Lord Jesus Christ, by his grace, he saved us, हमारे खुदावंद यीशुआ ने अपनी बड़ी मोहब्बत के मुताबिक हमें बचाया and by his precious blood, he redeemed us, और अपने बेशकीमत खून से खुदावंद यीशुआ ने हमें मखलसी बख्शी and he cleansed us and made us righteous before him. और खुदावंद यीशुआ ने हमें धोकर नेको पाक अपने सामने बना दिया। Not only that, he made us as his dwelling place. इतना ही नहीं बल्कि खुदावंद यीशुआ ने हमें खुदा की रहाइशगाह बना दी। And 1 Corinthians chapter 3 verse number 16 telling us that 1 Corinthians chapter 3 पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 3 verse number 16, और आयत नंबर 16 में लिखा हुआ है, know ye not that ye are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you? क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? God made us as his temple, खुदा ने हमें अपना ही मकदिस बनाया है and he wants to live inside us. और वो हमारे अंदर बसना चाहता है। And also the word of God telling us that in Ephesians chapter 2 verse number 22, इतना ही नहीं बल्कि खुदा के कलाम में इफिसियों की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 22 में लिखा हुआ है, Ephesians chapter 2 verse number 22, इफिसियों की किताब 2 की 22, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। We are made as a holy temple to our God. हमारे खुदा के लिए उसने हमें एक पाक मस्कन या रहाइशगाह बना दिया है। God made us and God is dwelling in us. खुदा ने हमें बनाया और वो हमारे अंदर बसने को वो चाहता है। He redeemed us from the darkness. उसने हमें तारीकी से छुड़ाया। He brought us into his marvelous light. उसने हमें अपनी अजीब रोशनी में दाखिल फरमाया। Even though we are unworthy people, he cleansed us and he made us righteous before him. हम तो नालायक लोग थे, गुनहगार थे, फिर भी उसने हमें खुदावंद यीशुआ के खून में धोकर हमें लायक बनाए। Even though our hearts are not pure or not holy, he made us holy that he may dwell in us. और हम तो नापाक दिल वाले थे, लेकिन खुदा ने हमें पाक बनाया ताकि वो हमारे दिल में उस पाकीज़गी में वो बस सके। The one who is dwelling in us is the one who is greater than that he is in the world. हमारे अंदर जो रहता है वो दुनिया में जो है उससे भी बड़ा है। The word of God telling us that in 1 John पहला यूहन्ना की किताब 4 की 4 में chapter 4 verse number 4,
Ye are of God little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. पहला यूहन्ना 4:4 में हम पढ़ते हैं, तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। We are of God, and the God who is in our hearts is the greatest one than that is in the world. हम खुदा से हैं और हमारा अंदर जो है वो इस दुनिया की ताकत से भी बड़ा है। And as the 48:1 Psalm number 48:1 says that great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of his holiness. इसीलिए मज़ामिर की किताब चैप्टर 48 में आते हैं, पहली आयत देखते हैं, हमारे खुदा के शहर में अपने कोहे मुकद्दस पर यहोवा बुजुर्ग और बेहद सिताइश के लायक है। God makes his permanent dwelling among his people. खुदा अपने लोगों के दरमियान हमेशा बसना चाहता है। And second thing we see from the second verse is that, let us read second verse. और दूसरी आयत हम पढ़ते हैं, Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, on the sides of the north, the city of the great king. शिमाल की जानिब कोहेत सियोन जो बड़े बादशाह का शहर है, वो बुलंदी में खुशनुमा और तमाम जमीन का फख्र है। God made his city as beautiful that whole earth may see it and be blessed. खुदा ने अपने शहर को इतना शानदार बनाया कि तमाम रुए जमीन के लोग उस पर निगाह करके ताज्जुब हो जाएं। Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion. शिमाल की जानिब कोहेत सियोन जो बड़े बादशाह का शहर है, वो बुलंदी में खुशनुमा और तमाम जमीन का फख्र है। Zion was beautiful not because of its buildings, but because God's glory rested there. सियोन का शहर जो है वो उसकी इमारतें जो हैं उनकी वजह से शानदार नहीं है, बल्कि इसलिए शानदार है क्योंकि खुदा उसमें बसता है। Likewise, Christ beautifies his church by his grace and makes it a blessing to the nations. इसी तरह खुदावंद यीशुआ भी अपने इक्लीसिया को वो उनके दरमियान रहते हुए तमाम गोईम या दुनिया के तमाम बाकी लोगों के सामने उसे शानदार बनाता है। Our Lord Jesus Christ, who is the light of the world, made us also as a light to the world. हमारे खुदावंद यीशुआ जो दुनिया के नूर हैं, हमें भी दुनिया के नूर बना चुके हैं। Matthew chapter 5 verse number 14, he calls us as a light to the world. मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 5 और आयत नंबर 14 में हम वहां देखते हैं कि खुदावंद यीशुआ ने हम सबों को दुनिया का नूर बना दिया है। Matthew chapter 5 verse number 14, ye are the light of the world, a city that is set on an hill cannot be hid. मत्ती की खुशखबरी 5:14, तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। As that Zion was a joy to all the nation, today now as a church we are the light to all the nations. जिस तरह सियोन उन दिनों में तमाम दुनिया का फख्र रहता है, इसी तरह हम भी आज के दिन तमाम दुनिया के सामने नूर बनकर चमकते हैं। And also in our Lord Jesus Christ, God gave every promise to us that is written in the word of God. इतना ही नहीं बल्कि खुदावंद यीशुआ ने खुदा के कलाम में जितने भी वायदे हैं उन सबों को हमारे लिए खुदावंद यीशुआ ने आमीन बना लिया है। And one of those promises is that promise given to Abraham in Genesis chapter 12 verse number 3. और उनमें से एक वायदा ये है कि पैदाइश की किताब में जो खुदा ने अब्राहम को वादा किया था, जैसे कि पैदाइश की किताब 12:3, And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं मुबारक दूंगा, मैं बरकत दूंगा, उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा,
करूंगा और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। God has chosen his church as a blessing to the nations. खुदा ने अपनी इक्लीसिया को तमाम रुए जमीन के कबीलों की बरकत बनाकर चुना है। And he is giving us this promise that in thee shall all families of the earth be blessed. और उसी में खुदावंद ने ये वादा भी हमसे किया है कि उसी इक्लीसिया में से कि खुदावंद यीशुआ में से ही तमाम दुनिया के कबीले बरकत पाएंगी। So two things we saw from the Psalm number 48. तो यहाँ पे हमने साम नंबर 48 में से दो बातें देखी है। Number one, God makes his permanent dwelling among his people. पहली बात यह है कि खुदा ने अपने लोगों के दरमियान अपना मस्कन हमेशा के लिए बना लिया है। And number two, God makes his church a blessing to all nations. और दूसरी बात यह है कि खुदा ने अपनी इक्लीसिया को, चर्च को, सारी दुनिया या तमाम लोगों के लिए एक बरकत का बाइस बना दिया है। And the third thing is that God is the only refuge of his church. और तीसरी बात यह है कि खुदा ही एक पनाह है अपनी सारी इक्लीसिया के लिए। So let us read verse number 3, Psalm 48 verse number 3. चलें मज़ामिर की किताब 48 की 3 हम देखें। God is known in her places for a refuge. उसके महलों में खुदा पनाह माना जाता है। Here, if we understand these three verses together, अगर इन 3 आयतों को हम सही तरह समझें, God is dwelling in a city, Zion, यहाँ पे मतलब ये आता है कि खुदा एक शहर में रहता है जिसका नाम है सियोन, and God beautifying that city and making as a joy to whole earth. और खुदा उस शहर को खुशनुमा बनाता है और तमाम जमीन का फख्र करार करता And है। also the God who is dwelling inside became a refuge to the people, those who are in that city. और इतना ही नहीं बल्कि उस शहर में रहने वाला खुदा अपने लोगों के लिए जो उस शहर के बाशिंदे हैं उनका पनाह बन चुका है। The security of that city is not the walls of that city, but it is God himself. उस शहर का पनाह या हिफाजत उस शहर के वॉल्स नहीं है बल्कि खुदा है जो उस शहर में बसता है। In our lives also, the security as a church, our Lord Jesus Christ. तो हमारी जिंदगी में भी हमारी तहफ़्फ़ुज़ या सिक्योरिटी हमारे खुदावंद यीशुआ हैं। It is not the resources, not the strength, but it is our Lord Jesus Christ alone is our strength and our refuge. हमारे माल व असबाब या हमारी ताकतें नहीं हैं बल्कि हमारे खुदावंद यीशुआ हैं जो हमारी ताकत, हमारा जोर और तहफ़्फ़ुज़ है। Word of God in Psalm 46 verse number 1 is telling us that मज़ामिर की किताब 46:1 में लिखा हुआ है, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. खुदा हमारी पनाह और क़ुव्वत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार। And also Proverbs 18 verse number 10 tells us that इतना ही नहीं बल्कि अमसाल की किताब 18 की 10 में लिखा हुआ है, Proverbs 18 verse number 10, अमसाल की किताब 18 की 10, the name of the Lord is a strong tower, the righteous runneth into it and is safe. यहोवा का नाम मुहकम बुर्ज है, सादिक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है। Our God dwelling among us, हमारा खुदा हमारे दरमियान बसता है। our God made us as a blessing to the nations, हमारे खुदा ने हमें दुनिया के कौमों के लिए बरकत बनाया है। and when the troubles and situations may come against us, our God himself is our refuge. और जब मुसीबतें तकलीफें हमारे मुखालिफ बनकर आते हैं तब हमारा खुदा ही हमारा पनाह बनता है। Our loving heavenly Father sent forth his only begotten Son, हमारे प्यारे आसमानी बाप ने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को भेजा। our Lord Jesus Christ with love, he himself calling us to be with him and to take refuge under him. और इसीलिए हमारे खुदावंद यीशुआ ने भी हमें बुलाता है कि हम खुदावंद यीशुआ में आकर पनाह लेकर महफूज रहें।
Matthew chapter 11, verse number 28. मत्ती की खुशखबरी चैप्टर 11 वर्स 28। Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. खुदा देशवा यहाँ फरमाते हैं, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। In our Lord Jesus Christ only we have rest. हमारे खुदा यीशुआ में ही हमें आराम है। He is our strength. He is our refuge. हमारे खुदा यीशुआ ही हमारी ताकत है और हमारी पनाह है। And we are secure in Him forever. और खुदा यीशुआ में ही हम सब हमेशा के लिए महफूज रहते हैं। And not only that, verse number 14 says that, और इतना ही नहीं बल्कि आयत नंबर 14 में लिखा हुआ है, Psalm 48 verse number 14, मज़ामिर की किताब 48 की 14, For this God is our God forever and ever. He will be our guide even unto death. क्योंकि यही खुदा अब्दुल आबाद हमारा खुदा है, यही मौत तक हमारा हादी रहेगा। This God who dwelleth in the city and who dwelleth among His people and who is our refuge is our God forever and ever. यही खुदा जो अपने लोगों के साथ शहर में बसता है और जो अपने लोगों के लिए पनाह बना रहता है, वही हमेशा के लिए हमारा भी पनाह है। He not only protects us but also He guides us even unto death. That means until our last breath. वो सिर्फ हमारी हिफाजत ही नहीं करता बल्कि अबद तक हमेशा के लिए या इस दुनिया में अपनी आखिरी सांस तक भी हमें वो आगे चराते रहता है। Enemy may come with great joy that he may defeat us, that he may invade us. दुश्मन तो बड़ी खुशी से आ सकता है कि हम पर वार करे और हम पर गलबा हासिल करे, But our God is with us. लेकिन हमारा खुदा जो है वो हमारे साथ है। He is dwelling among us. वो हमारे दरमियान वो बसता है। He made us to be a blessing to everyone, those who bless us, those who want to be with us. हमारे दरमियान वो रहकर हमें महफूज वो रखता है। And also He is our refuge. इतना ही नहीं बल्कि वो हमारा पनाह भी है। For this reason, let us look unto the Lord and worship Him. और इस वजह से हम हमारे खुदा को आज तकते हैं और उसकी इबादत हम करते हैं। Amen. आमीन।